बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम डिस्कस कर रहे थे माइक्रो एनकैप्सुलेशन के डिफरेंट मेथड्स। उनमें से हमने लास्ट टाइम जो डिस्कस किया था वो पॉलीमराइजेशन मेथड था। पॉलीमराइजेशन जिसमें हमने 3 मेथड्स एक्चुअली डिस्क्राइब किए। पॉलीमराइजेशन जिसमें एक इंटरफेशियल पॉलीमराइजेशन था, दूसरा इन सीटो पॉलीमराइजेशन है और थर्ड वन मैट्रिक्स पॉलीमराइजेशन है। तो हमने इन तीनों की बेसिस के ऊपर डिस्क्राइब किया कि हम कैसे माइक्रोस्फीयर या माइक्रो कैप्सूल डेवलप कर सकते हैं by using any of one of those 3 methods. तो टोटल जो मेथड है हमारे पॉलीमराइजेशन के वो माइक्रो एनकैप्सुलेशन के वो 5 हमने शुरू में स्टार्ट में से डिस्कस किए थे। 5 मेथड्स हम नॉर्मली यूज करते हैं टू डेवलप माइक्रो एनकैप्सुलेशन और हमारे कोर्स का हिस्सा है यानी कि ये। तो उनमें से हमने पहले 4 डिस्कस कर लिए हैं। फर्स्ट वन वाज वर्स्टर एयर सस्पेंशन टेक्निक, सेकंड one was conservation technique, and third one was solvent evaporation method. Fourth one is actually the polymerization, which was discussed in the last lecture. So now today is our 5th and last method to discuss for microencapsulation. This method is known as spray drying and alternatively as spray congealing. These are 2 different methods, spray drying and spray congealing, based on a same principle of spraying, on atomization, on dispersion of the core material with the coat material in an airstream is known as spraying. So drying of those particles will result in microencapsulation. So spray drying and spray congealing are actually the method of, one is the drying method and other is a congealing method. And congealing means a solidification method or any method which is involved in solidification without heating is congealing, or you can say it by cooling. A cooling process is congealing and a heating process is drying. So if we are spraying our particles and then drying it either by heat or by congealing process, then this process will be spray drying and spray congealing microencapsulation. So starting this method, first of all, we will actually discuss what is the principle or how can we actually perform this spray drying and spray congealing process. In this process, we actually are dispersing our core material and a coat material in other solvent, or we are dispersing our core material in a coat material. हम drug को, core material means a drug substance and a coat material means a polymeric material. We are dispersing our core material, which is a drug, into a coat material, which is a polymer. So a solution of polymer will have a core material, or we will have a emulsion that contains core material and a coating material. This emulsion will be actually sprayed, and after spraying we will actually dry it or congeal it to get microencapsulation. Normally the spray dryer or spray congealing methods have with sprayers which can actually spray a solution with high viscosity. A viscosity more than actually 300 millipascals can be managed by these dryers, these sprayers. So the sprayers with such a kind of high efficiency are actually nowadays used for spraying process. Spray drying actually will be used for rapid evaporation. So the particle actually are dispersed in the form of mist particles or in the form of dispersed liquid droplets, and they have a small liquid droplets and multiple liquid droplets of the small volume of a solution, which will increase its surface area to excessive amount. The increased surface area will affect high rate of evaporation due to high heat contents or high cooling environment that will cause rapid evaporation of the solvent from the droplets. So a coating material, if it is soluble in a solvent will be evaporated and the coating material will deposit on the core material. That will result in microencapsulation.
So there are two techniques actually. We have, as said, spray drying and spray congealing. In spray drying technique, coating material is actually solidified by way of evaporation, rapid evaporation of solvent by using heat, जिसमें हमने हीट की है, और सॉल्वेंट कोटिंग मटेरियल जो है वो डिसॉल्व्ड है जिस सॉल्वेंट में, उसको हमने हीट करके इवेपोरेट किया है। स्प्रे कंजीलिंग में हमने थोड़ा सा डिफर किया है कि हमने जो कोटिंग मटेरियल को पहले सोल्यूशन लिया था, अब हमने कोटिंग मटेरियल को मेल्ट किया हुआ है, मोल्टन कोटिंग मटेरियल है। तो ये मोल्टन कोटिंग मटेरियल एक्चुअली यूज होगा टू डिस्पर्स द ड्रग सब्सटेंस। उनकी विस्कोसिटी हायर होती है, जिसकी बात हमने शुरू में भी की है कि हायर विस्कोसिटी के आजकल मॉडर्न स्प्रे ड्रायर जो है वो हायर विस्कोसिटी को भी डील कर सकते हैं स्प्रेयर्स। तो अगर हम एक मोल्टन पॉलीमर ले लें और उसमें हम डिस्पर्स कर दें कोर मटेरियल को, और उसकी एक सस्पेंशन बन जाए, एमल्शन बन जाए, और फिर हम उसको स्प्रे करें, और फिर हम वो जो पॉलीमर है वो क्योंकि स्प्रे होके तो पार्टिकल में एटमाइज्ड पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो जब इन कूल एयर आएगा, इन कोल्डर एनवायरनमेंट आएगा, तो वो सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो सॉलिडिफाई होके वो जो पॉलीमेरिक मटेरियल जिसके अंदर ड्रग डिस्पर्स है, वो वहीं से अंदर ड्रग के ऊपर वो सॉलिडिफाई हो जाएगा और माइक्रो एनकैप्सुलेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जस्ट जनरली थोड़ा सा हम स्प्रे ड्राइंग और स्प्रे कंजीलिंग के बारे में थोड़ी सी बात कर लें। तो स्प्रे ड्राइंग जो है वो ज्यादातर मेथड यूज किया जाता है देन स्प्रे कंजीलिंग। स्प्रे कंजीलिंग एक कम ऑप्टेड, क्योंकि बहुत कम पॉलीमर ये अलाउ करते हैं कि वो एक 30-40 डिग्री सेंटीग्रेड पे मोल्टन स्टेट में हो और फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो सॉलिड ही रहें और स्टेबिलिटी शो करें, इसलिए ज्यादातर स्प्रे ड्राइंग यूज की जाती है। और क्योंकि इवेपोरेशन बहुत लार्जर सरफेस एरिया से हो रही होती है, तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हमें रिक्वायर्ड नहीं होता। एक सब्सटेंस अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड इवेपोरेट करता है, तो वो इवन 30 पे इवेपोरेट कर देगा जब ऑटोमाइज्ड पार्टिकल होंगे। तो ऑटोमाइज्ड पार्टिकल्स के लिए बहुत लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है इवेपोरेशन का, इसलिए स्प्रे ड्राइंग बहुत कॉमनली यूज की जाती है। तो वाल मटेरियल को हमने एक्चुअली मिक्स करना होता है इन अ पॉलीमेरिक मटेरियल, इन अ कोटिंग मटेरियल, ताकि हम उनकी एक डिस्पर्शन अचीव कर लें, होमोजीनियस डिस्पर्शन अचीव कर लें, या हम उनकी सोलुबलाइजेशन अचीव कर लें। तो सोल्यूबल हो जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, पॉलीमर और ड्रग का मिक्सचर बन जाएगा। तो वो जब इवेपोरेट करेगा तो उसमें से वो माइक्रो स्फीयर बनने शुरू होंगे, और अगर वो डिस्पर्स की हुई होगी उसमें, तो वो उसके ऊपर कोट बन जाएगा, तो वो माइक्रो कैप्सूल बनने शुरू हो जाएगी। सिमिलरली स्प्रे कंजीलिंग जो है वो उसी इक्विपमेंट में होनी है जिसमें स्प्रे ड्राइंग होनी है, लेस यूज होती है देन स्प्रे ड्राइंग मेथड। और कोटिंग मटेरियल जो है, क्योंकि हमने इसमें मेल्ट की फॉर्म में लगाना होता है, तो कोर मटेरियल को हम डिस्पर्स करते हैं एक मोल्टन कोटिंग मटेरियल के ऊपर, तो फिर हम उसको हम सॉलिडिफाई कर लेते हैं। यानी कि कोटिंग सॉलिडिफिकेशन जो है, जिसको हम माइक्रो एनकैप्सुलेशन कहते हैं, वो फिर होती है जब हम उसको स्प्रे कर देते हैं हॉट मिक्सचर को जो कि मोल्टन है इनटू अ कूलर एनवायरनमेंट, कूल एयर स्ट्रीम में, तो इससे वो सॉलिडिफाई हो जाती है। तो ये जो स्प्रे ड्राइंग स्प्रे कंजीलिंग टेक्निक्स है, एक्चुअली हम इनको यूज करते हैं फॉर द मटेरियल्स विच आर हीट सेंसिटिव। तो थर्मोलेबाइल जो ड्रग्स हैं हमारी, उनके लिए फिर हमने अगर माइक्रो एनकैप्सुलेशन करनी है तो हम स्प्रे ड्राइंग या स्प्रे कंजीलिंग, क्योंकि बहुत लो लेस टेम्परेचर के ऊपर हम ये प्रोसेस अडॉप्ट कर लेते हैं। सॉल्वेंट इवेपोरेशन में भी हमें टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना पड़ता है, कंसर्वेशन भी अगर टेम्परेचर की बेस के ऊपर की जा रही है तो उसमें भी हमें टेम्परेचर काफी ज्यादा अडॉप्ट करना पड़ता है। तो इसलिए ये यूज होती है बहुत सी हीट सेंसिटिव जैसे फूड्स मटेरियल हैं उनकी करने के लिए, या फार्मास्यूटिकल मटेरियल्स हैं उनको करने के लिए, या बहुत से अदर सब्सटेंसेस के लिए, क्योंकि ड्रॉपलेट से सॉल्वेंट को इवेपोरेट करना बहुत इजी होता है। बहुत कम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन चाहिए होती है, जो कि बहुत कम हीट से ही हम अचीव कर सकते हैं। बहुत कम हीटेड एयर मूव करने से हम उसको अचीव कर लेते हैं। या कूल एयर से हम थोड़ा सा हीट मोल्टन स्टेट में पॉलीमर को ले आए, वो 50 डिग्री हो तो उसमें हम डिस्पर्स करें तो 50 से ऊपर नहीं जाता टेम्परेचर ड्रग का, तो हीट सेंसिटिव ड्रग्स इससे यूज की जाती हैं। तो ये क्योंकि ज्यादा कन्वेंशनल दूसरे मेथड से जो कि सॉल्वेंट इवेपोरेशन या कंसर्वेशन है, उनसे जरा ज्यादा बेटर टेक्निक है फॉर माइक्रो एनकैप्सुलेशन, ज्यादा एडवांटेजेस हैं, तो इसलिए ये ज्यादातर यूज की जाती है लार्ज स्केल के ऊपर। तो लार्ज स्केल में सबसे ज्यादा जो टेक्निक आजकल यूज की जाती है माइक्रो एनकैप्सुलेशन के लिए वो स्प्रे ड्राइंग एंड स्प्रे कंजीलिंग है। उसके बाद जो यूज की जाती है वो वर्स्टर एयर टेक्निक है, फिर पॉलीमराइजेशन है, और उसके बाद फिर स्मॉल स्केल पे जो यूज की जाती है वो कंसर्वेशन है और सॉल्वेंट इवेपोरेशन मेथड है। ये हम स्मॉल स्केल पे, यानी कि जो हम एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस करते हैं वो हम सारा
कंजर्वेशन से या सॉल्वेंट इवेपोरेशन टेक्निक से करती हैं। तो अगर ये ज़्यादा सक्सेसफुल हो देन स्प्रेइंग, तो फिर ये ज़्यादा बेटर होती हैं कि ये इनके रिजल्ट अगर ज़्यादा अच्छे आए तो फिर वो स्प्रे से तो बहुत ही अच्छे आएंगे, तो लेकिन स्प्रे के लिए इतना खर्चा करना, एक्सपेंस करना कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए होता है कि स्प्रे से बहुत ज़्यादा माइक्रो एनकैप्सुलेशन बड़े स्मॉल टाइम के ऊपर बन जाते हैं, तो ज़्यादा वर्क फोर्स भी रिक्वायर्ड नहीं होती है, एक मशीन ने कर देना है सारा कुछ, तो इसलिए ये कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, तो ये ज़्यादा बेटर है। अगर हम इसको ज़रा एक डायग्रामेटिकली या फ्लो की फॉर्म में देखें तो सबसे पहले हमने क्या करना है, कोर मटेरियल और वार मटेरियल को होमोजेनाइज करना है, यानी कि हमने एक कंजीलिंग का अगर प्रोसेस है तो हमारा वॉल मटेरियल जो है वो मोल्टन स्टेट में होगा और कोर मटेरियल उसमें हम डिस्पर्स करेंगे या डिसॉल्व करेंगे। और अगर ये हमारा मोल्टन नहीं है, हम इसको फिर डिसॉल्व करेंगे किसी सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में फॉर एग्जांपल डिसॉल्व किया, हम उसके अंदर कोर मटेरियल को डिस्पर्स करेंगे और हम उनको होमोजेनाइज करके एक इमल्शन बना लेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारा कोर मटेरियल ऑयल है और हमारा वॉल मटेरियल जो है वो वाटर सोल्युबल है, तो हम ऑयल इन वाटर इमल्शन एक बना लेंगे। इस इमल्शन को हम स्प्रेयर के साथ लगा देंगे इन अ ड्रायर। ड्रायर में हम स्प्रे नोजल से इसको स्प्रे करेंगे, जो कि ऑटोमाइजेशन देगा पार्टिकल्स को बहुत ही स्मॉलर साइज के ऊपर, और वो हॉट एयर के साथ इन कांटेक्ट आ जाएगी इन द केस ऑफ स्प्रे ड्राइंग। तो वो हॉट एयर के साथ जब इन कांटेक्ट आएगी तो वो जो बाहर सॉल्वेंट, क्योंकि एक्सटर्नल इमल्शन का वो होता है जो कि हमने इवेपोरेट करना होता है, यानी कि वो वाटर है फॉर एग्जांपल, तो वो वाटर इमीडिएटली इवेपोरेट कर देता है। अगर ये हमने वाटर इन ऑयल इमल्शन बनाई हुई है तो ऑयल ऑर्गेनिक फेज होगा, तो ऑर्गेनिक फेज इमीडिएटली इवेपोरेट कर देगा, जैसे ही वो हॉट ऑटोमाइजर से बाहर आएगा उस वक्त ही आधा तो इवेपोरेट कर देता है, और बाकी जो है क्योंकि कूलिंग प्रोसेस होता है एक्चुअली, तो वो हीट इवॉल्व करता है। हीट इवॉल्व करने से उसमें से सॉल्वेंट जो है वो पार्टिसिपेट करता है हीट इवॉल्व करने। तो इतनी देर में हॉट एयर अगर आ रही है तो वो एक पार्टिकल के ऊपर आती है तो सारा सॉल्वेंट बाहर निकाल देती है। इस तरह से वो बड़ी जल्दी नीचे फॉल करना शुरू हो जाती है। तो ये दोनों तरह के हो सकते हैं। अगर हमने मोल्टन स्टेट के अंदर उस पॉलीमर में इमल्शन बनाई है और इमल्शन में हमने डिसॉल्व किया हुआ है पॉलीमर को भी और कोर को भी, और उसको हमने एक दूसरे वाटर के अंदर डिस्पर्स किया है, तो वो जब एक दफा डिस्पर्स करेंगे तो बाहर से वाटर इवेपोरेट करे और अंदर से वो जो पॉली न्यूक्लियर बनना शुरू हो जाती है। इस तरह अगर वो डिसॉल्वेबल हो कोर मटेरियल और वार मटेरियल तो वो मैट्रिक्स टाइप बनना शुरू हो जाते हैं, तो मोनो न्यूक्लियर से मैट्रिक्स टाइप तक हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो लो कॉस्ट एक कमर्शियल प्रोसेस है जो कि हम यूज करते हैं माइक्रो एनकैप्सुलेशन को। इसमें कोर पार्टिकल आइदर डिस्पर्स्ड हो सकते हैं इन पॉलीमेरिक सॉल्यूशन या डिसॉल्व हो सकते हैं इन पॉलीमेरिक सॉल्यूशन, और फिर हम इसको स्प्रे करते हैं इनटू हॉट चैम्बर। स्प्रेइंग के बाद जो पॉलीमर है वो डिपॉजिट करना शुरू हो जाता है ऑन द कोर मटेरियल के ऊपर। तो फिर इस प्रोसेस को हम 3 स्टेप्स में लिख सकते हैं। तो हमारे इस प्रोसेस के 3 बेसिक स्टेप्स हैं। नंबर 1 जो है हमने प्रिपेयर करना है एक ऑर्गेनिक सॉल्यूशन, और एक हमने ड्रग ले लेनी है। तो ड्रग और ऑर्गेनिक सॉल्यूशन में हमने प्रिपेयर करना है सॉल्वेंट जो पॉलीमेरिक सॉल्यूशन। वो पॉलीमेरिक सॉल्यूशन हमने उसमें डिसॉल्व कर दिया और फिर हमने उसमें ड्रग को डिस्पर्स कर दिया। इसको हमने होमोजेनाइज किया है और हमने एक इमल्शन प्रिपेयर कर ली है या हमने एक सस्पेंशन प्रिपेयर कर ली है। तो ये 2 स्टेप है। तीसरे स्टेप में हमने इसको ऑटोमाइज कर देना है। तो ऑटोमाइज करने के लिए हमने उसके लिए एक एटॉमाइजर या स्प्रे ड्रायर लेना, स्प्रेइंग इक्विपमेंट लेना है, स्प्रे फॉर्मिंग एजेंट लेना है। तो वो उसको ड्राई कर देगा, फिर हम ड्राइंग चैम्बर में आएगा ऑटोमाइजेशन, तो वो ड्राई हो जाएंगे और ग्रेन्यूल्स अटेन होना शुरू हो जाएंगे या माइक्रो पार्टिकल्स अटेन होंगे। स्प्रे ड्राइड इसलिए ज्यादा ये टेक्निक ज्यादा सुपीरियर है कि स्प्रे ड्राइंग में या स्प्रे कंजीलिंग में जो स्मॉल पार्टिकल साइज है वो बहुत स्मॉलर होता है। नेवर वी हैव ऑब्टेन्ड अ पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 100 माइक्रोमीटर। तो सारे पार्टिकल 100 से लेसर होते हैं। जब इतने ज्यादा कम साइज के पार्टिकल्स हम इससे अटेन करते हैं स्प्रे से, और इसको हम और ज्यादा करते हैं, ऑटोमाइजर प्रॉपरली सिलेक्ट किया जाए तो हम बहुत नैनो पार्टिकल तक, नैनो साइज तक के ड्रॉपलेट्स अटेन कर सकते हैं। तो वो इनको हाईली इतना ज्यादा, जब पार्टिकल का सरफेस एरिया ज्यादा होता है और साइज उसका इतना कम होता है तो वो फिर बहुत ज्यादा सॉल्युबल हो जाता है, उसको बहुत ज्यादा सॉल्युबल बना देते हैं। तो जो शेल मटेरियल हम नॉर्मली यूज करते हैं या पॉलीमर्स जो इसमें यूज करते हैं वो हर वैरायटी के हैं, यानी कि वो गम से लेके हमारे सिंथेटिक तक, और सिंथेटिक से वो प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स तक भी हैं। तो यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल दी हुई है। आप अगर देखें तो उसमें गम अकेशिया बहुत ज्यादा यूज हुआ है, माल्टोडेक्स्ट्रिन बहुत ज्यादा यूज हुए हैं,
इस तरह स्टार्च जो कि ये हमारे पॉलीसेकेराइड्स में से है, कार्बोहाइड्रेट्स में से स्टार्च और उसका मिक्सचर जो कि हाइड्रोफोबिकली मॉडिफाइड होता है, यानी कि उसकी थोड़ी सी क्योंकि इसकी हाइड्रोफिलिक प्रॉपर्टी होती है तो ऑर्गेनिक में नहीं डिसॉल्व होता है, तो हमें इसे मॉडिफाई किया हुआ होता है, तो मॉडिफाई करके हम इसको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर सकते हैं। इस तरह पॉलीसेकेराइड जैसे एल्जीनेट है या कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज है, सीएमसी जिसको कहते हैं, या ग्वारगम है, ये भी यूज किए गए हैं इसी तरह से माइक्रो इनकैप्सुलेशन। और प्रोटीन्स जैसे बायो प्रोटीन है, बायो प्रोटीन यूज हुई है एज अ कोटिंग मटेरियल, इस तरह सोया प्रोटीन यूज हुई है, सोडियम कैसिनेट यूज हुआ है, ये बाल मटेरियल के लिए यूज हुआ है। इसके अलावा फिर सिंथेटिक पॉलीमर आजकल जो यूज होते हैं, ये शुरू में यूज हो रहे हैं टिपिकली पहले से, लेकिन अब जो पॉलीमराइजेशन हो रही है वो सिंथेटिक पॉलीमर से हो रही है। लेकिन जब हमने फूड मटेरियल को करना होता है तो फिर हम नेचुरल पॉलीमर से ही करते हैं, यानी कि हम कार्बोहाइड्रेट से या पॉलीसेकेराइड से या फिर हम प्रोटीन से, इन्हीं से हम परफॉर्म करते हैं। तो ये क्योंकि ज़्यादातर फूड मटेरियल को ज़्यादा माइक्रो इनकैप्सुलेट करना पड़ता है, तो वो इसलिए ये ज़्यादा कॉमनली यूज। अच्छा, इसको अगर हम कमर्शियल स्केल पे देखें तो एक इतने बड़े साइज का हमारा ये इक्विपमेंट होता है जिसमें एक एटोमाइजर लगा होता है। एटोमाइजर जो है वो इस तरह से स्प्रे प्रोड्यूस करने की एबिलिटी रखता है। तो स्प्रे का ड्रॉपलेट बहुत स्मॉलर होता है, अगर आप इसके अंदर देखें तो इसमें जो नोजल जिसमें से ड्रॉपलेट निकल रहे हैं वो इस तरह से, इसको हमने बड़े साइज में करके देखा है, दिखाया हुआ है, तो ये पार्टिकल इस तरह से निकल रहे हैं, जो कि आपको इस तरह मिस्ट जहाँ पे नजर आ रही है वो ऐसे पार्टिकल सेपरेट सेपरेट ड्रॉपलेट्स वहां से निकलते हैं। तो ये एटोमाइजर की स्पिन रेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा स्पिन करेगा, उतना ही वो फिर ज्यादा स्मॉलर पार्टिकल प्रोड्यूस करेगा, या उसके अंदर क्या एनर्जी है जिसकी बेस के ऊपर एटोमाइजर ऑटोमाइजेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो कोई भी हो, चाहे वो स्पिन करके कर रहा हो या वो किसी और भी नॉमिना पे इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस करके कर रहा हो, तो उसने एक एटोमाइजर ने किसी एक स्पीड के ऊपर इसको नीचे गिराना है। तो ये अगर फॉर एग्जांपल एक हमारी पूरी ट्यूब है तो उसमें ये एटोमाइजर लगा हुआ है, एटोमाइजर से ये पार्टिकल्स इसमें से बाहर आ रहे हैं, पार्टिकल यहाँ से स्प्रेड आउट हो रहे हैं। इनको फिर ये नीचे से, इनको हमने ये यहाँ से ड्राइंग गैस ऊपर से इंड्यूस करते हैं, ये फीड है तो इसके साथ से हम ड्राइंग एयर भी उसके साथ ही ऐड करते हैं। तो ये सारे डिस्पर्स जो है वो ड्राई एयर में, हीटेड एयर के अंदर आ जाते हैं। एयर प्रेफरेबली, एयर हमारी ऑक्सीजन नहीं होती या नॉर्मल एनवायरमेंटल एयर नहीं होती, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है, इतने सरफेस एरिया पे वो रिएक्ट कर सकती है। तो कोई इनर्ट गैस जैसे नाइट्रोजन एक इनर्ट गैस है, तो नाइट्रोजन हम इंड्यूस करते हैं। HEPA फिल्टर लगाया होता है इसलिए कि वो पार्टिकल्स को ना जाने दे, सिर्फ और सिर्फ एयर यहाँ से मूव करे। तो वो एयर इसको ड्राई करती है तो पार्टिकल नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि एयर का प्रेशर होता है, तो ये इससे आगे साइक्लोन में आ जाते हैं। साइक्लोन इसको बहुत ज्यादा रोटेट करता है ताकि जो पार्टिकल यूनिफॉर्म साइज के नहीं है, वो बेअंगम है, तो वो साइक्लोन में मूव करके वो यूनिफॉर्म साइज के हो जाए, और जो पाउडर मटेरियल है वो साइक्लोन से नीचे को गिरना शुरू हो जाए, वो पाउडर इसके अंदर ना फिर सके, क्योंकि ये तो जरा पार्टिकल को होल्ड करेगा, तो वो होल्ड नहीं होते, वो नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं। तो पाउडर जो है वो यहाँ से नीचे से अटेन हो जाता है और वो दोबारा से वापस फीड की फॉर्म में डाला जाता है, जो कि माइक्रो कैप्सूल नहीं हमें नजर आ रहे होते, वो फीड की फॉर्म में डाल दिए जाते हैं दोबारा दोबारा माइक्रो कैप्सूल बनाने। बाकी जो है वो आगे मूव कर देते हैं, आगे बैग फिल्टर लगे होते हैं, ये एयर को अलहदा करते हैं, सेपरेट करते हैं और सॉलिड को सेपरेट करते हैं। स्टिल अगर उसमें फिर भी सॉलिड पार्टिकल गुजर जाए कोई जो कि उससे भी बैग से भी छोटा, क्योंकि ये तो साइज होता है माइक्रोस्फीयर या उससे छोटा, तो वो अगर उसमें से गुजर जाए तो फिर वो हेपा फिल्टर आगे लगा होता है। हेपा फिल्टर उसको भी फिल्टर करके एयर को वापस कंडेंसर में लेके आता है। तो कंडेंसर में क्योंकि ये सॉल्वेंट होता है, इसमें नाइट्रोजन तो फिर चल पड़ती है आगे, नाइट्रोजन ने तो नहीं रुकना, वो तो कंडेंसर में आएगी तो वो फिर आगे प्रेशर देखेगी तो वो आगे चल पड़ेगी। लेकिन जो सॉल्वेंट इवेपोरेट हुआ होता है फ्रॉम द पार्टिकल, जिसमें हमने ये कोर मटेरियल को एक्चुअली डिसॉल्व किया था, वो सॉल्वेंट इस कंडेंसर से रिकवर होना शुरू हो जाता है, तो वो हम रिकवर कर लेते हैं। तो ये एक प्रोसेस है हमारा स्प्रे ड्राइंग या स्प्रे कंजीलिंग का। कंजीलिंग में इतना फर्क है कि ये जो हीटेड एयर है ये कूल एयर होती है, और मोल्टन पॉलीमर के साथ हम इसको डिस्पर्स करते हैं, तो ये कूल एयर के साथ आता है। यहाँ पे हीटर नहीं लगा होता है, यहाँ पे आपका कोई कूल कूल कंप्रेसर लगा हुआ होता है जो कि इसको कूल कर रहा होता है। तो इतना इसमें फर्क होता है। ये हमारा लास्ट मेथड था, और इसके बाद हमारा शुरू हो जाएगा कि हमने छोटा सा टॉपिक जनरली कि हमने क्या वैल्यूएशन टेस्ट करने हैं, कि हमने ये फाइंड करना है कि हमने माइक्रो इनकैप्सुलेशन मेथड से जो अचीव किया है क्या वो बेटर है, एक्सीलेंट है, या गुड है, या बैड है। तो उसके लिए एक टेस्ट जो हम करते हैं, नॉर्मली भी डिफरेंट टेस्ट किए जाते हैं। बेसिक टेस्ट परसेंटेज यील्ड का होता है। परसेंटेज यील्ड हम कहते हैं कि हमने कितने बनाने थे
और कितने हमें बने हैं। यानी कि परसेंटेज यील्ड से मुराद है कि मैंने पाउडर मटेरियल इतना लिया था, मैंने सॉल्वेंट इतना लिया था, मैंने पॉलीमर इतना लिया था। सॉल्वेंट मुझे कितना रिकवर हुआ वो भी हमने कैलकुलेट करना है। मैंने मुझे पॉलीमर और ड्रग मिक्सचर होकर कितने माइक्रो पार्टिकल्स बने हैं ये मैंने लेने हैं। तो ये अमाउंट ऑफ माइक्रो पार्टिकल ऑब्टेन्ड को हम वे कर लेते हैं, जितने माइक्रो पार्टिकल बनते हैं उनको वे कर लिया जाता है, और फिर हम उसको जितने हमने एक्चुअली हमारी थ्योरेटिकल अमाउंट थी, जितना हमने टोटल डाला हुआ था, उससे हम डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं। तो ये परसेंटेज यील्ड बताता है। परसेंटेज यील्ड से कोई तल्लक नहीं है कि ये ड्रग की वो क्वांटिटी बताता है। परसेंटेज यील्ड ओनली ये बताता है कि आपने जो प्रोसेस अडॉप्ट किया वो कितना सक्सेसफुल है। ये परसेंटेज जितनी बेटर होगी उतना आपका प्रोसेस की सक्सेस ज्यादा होगी कि आपने इसमें जो माइक्रो एनकैप्सुलेशन, जो माइक्रोस्फीयर ऑब्टेन किए हैं वो कितने परसेंट है, कितने एफिशिएंट है। अगर वो आप 85% या 90% तक ऑब्टेन करते हैं तो वो आपका प्रोसेस एक्सीलेंट कहलाए। अदरवाइज आपको फिर रिपीट करना है और आपको कोई और पैरामीटर अडॉप्ट करनी है, ये पैरामीटर ठीक नहीं है। अच्छा, दूसरा मेथड जो होता है उसको कहते हैं हम परसेंटेज एंट्रैपमेंट या कैप्चर एफिशिएंसी के नाम से कहते हैं। ये परसेंटेज एंट्रैपमेंट से मुराद अब ड्रग आ जाती है। तो इसमें हमने ड्रग को एंट्रैप करना होता है, ड्रग फाइंड करनी होती है या कैप्चर एफिकेसी में। तो हम हर ड्रग का जो भी टेस्ट करते हैं वो अकॉर्डिंग टू मोनोग्राफ करते हैं। तो हम अकॉर्डिंग टू मोनोग्राफ्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि हम कर सकते हैं यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से इंशाल्लाह वापस आएंगे तो हम इंशाल्लाह लैब में परफॉर्म भी करेंगे। आपकी हैंड ऑन प्रैक्टिस ज़रूर होगी कि आप इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। तो वो ज़रूर परफॉर्म करें, किया भी होगा आपने बायोफार्म में कुछ ना कुछ, लेकिन वो अब हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ज़रूर करवाएंगे इंशाल्लाह। तो उसमें हमने एक्चुअल कंटेंट फाइंड करने हैं, यानी कि हमने टेस्ट लगा के माइक्रो एनकैप्सुलेशन का कोई सैंपल लेके उसमें से हमने एक्चुअल कंटेंट फाइंड करने हैं, और उसमें जो थ्योरेटिकल होते हैं उन थ्योरेटिकल से हमने डिवाइड करना है। सिमिलरली जैसे मैंने आपको लैब में बताया हुआ था पहले, जैसे हम परफॉर्म करेंगे, यानी कि लैब में मैंने आपको बताया था जैसे हम कंटेंट्स उसके निकालेंगे। एक्सेल पे आप इसकी ट्रेनिंग भी करेंगे। आप ट्रेनिंग वीडियो एक पढ़ी है वैसे तो एमफिल के सेक्शन में, प्ले लिस्ट में, वो उसी से रेलिवेंट है, उनको करवाया है, वो आपके लिए भी वही है, वो हेल्पफुल होगी। तो वो भी आप देख सकते हैं, नहीं तो हम इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे इसके ऊपर। तो एक्चुअल कंटेंट को हम थ्योरेटिकल कंटेंट से डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाइड बाय 100 करते हैं, तो ये परसेंटेज एंट्रैपमेंट आती है, या ये हमें कहते हैं कि ये हमारी परसेंटेज ड्रग रिलीज आती है, या परसेंटेज ड्रग होल्ड अपहेल्ड आती है। ये कितनी कैप्चर एफिशिएंसी आई है। तो ये परसेंटेज यील्ड से थोड़ा सा डिफरेंट टेस्ट। तो ये एक प्रिलिमिनरी 2 टेस्ट होते हैं। इसके बाद हमारा एक मेजर टेस्ट होता है जिसको हम इन विट्रो ड्रग रिलीज कहते हैं। इन विट्रो ड्रग रिलीज में हम ड्रग रिलीज फाइंड करते हैं कि रिलीज रेट क्या है, रेट ऑफ ड्रग रिलीज क्या है, जिसकी बेस के ऊपर हम उसको कह सकते हैं कि ये रिलीज रेट बहुत ज्यादा होने की वजह से वो इमीडिएटली इफेक्ट करेंगे या वो कितने टाइम के लिए डिलीवरी दे सकते हैं। तो नॉर्मली माइक्रो कैप्सूल्स हैं या माइक्रोस्फीयर्स हैं, माइक्रो इनकैप्सुलेशन के प्रोसेस से बने हुए माइक्रो पार्टिकल्स हैं, तो उनको हम नॉर्मली टाइप 2 डिसोल्यूशन टेस्ट ऑपरेटर्स में टेस्ट करते हैं। टाइप 2 वो वाला डिसोल्यूशन ऑपरेटर है जिसमें जो एक शैफ्ट और उसके साथ पैडल लगा हुआ था, शैफ्ट विद पैडल, और एक बीकर होता है राउंड बॉटम फ्लास्क जिसको कहते हैं, उसके अंदर मीडिया डाल के हम वो बैटर रोटेट करते हैं। ये टाइप 2 ऑपरेटर्स हैं। अब माइक्रो पार्टिकल जो है ये क्योंकि हम अगर उस सॉल्वेंट में डाल देंगे तो ये बहुत छोटे साइज के होते हैं और हमें नजर नहीं आते, तो हम जब सैंपल लेते हैं तो ये ओरिजिनली वहां से आना शुरू हो जाते हैं और वो फिर एक्चुअली कंटेमिनेशन या इम्प्योरिटी बताते हैं। जब लाइट उसमें से गुजरती है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की, तो अगर वो सॉलिड में से गुजर जाए तो वो बहुत ज्यादा अब्जॉर्बेंस दे देती है, और अगर वो लिक्विड में से गुजर जाए तो वो बहुत कम अब्जॉर्बेंस दे देती है, तो यूनिफॉर्मिटी नहीं आती। तो इसलिए हमें उनको होल्ड भी करना होता है। तो टी बैग्स, जैसे टी बैग होता है, टी बैग में टी के लीव्स को एक्चुअली उसमें एक बैग के अंदर होल्ड किया होता है, वो उनको बाहर नहीं आने देता। वो मैसीरेशन होती है, उसकी परकुलेशन होती है, मैसीरेट करते हैं हम उसको डुबो के, फिर हम उसको दबाते हैं, उसकी परकुलेशन करते हैं, तो वो उसके अंदर से वो बाहर नहीं आती, लेकिन सारे के सारे उनके कंटेंट्स बाहर आ जाते हैं। तो हम ड्रग रिलीज भी इसी बेस के ऊपर करते हैं कि सॉल्वेंट मूव करेगा थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ द बैग, जो टी बैग का बैग होता है जैसा, उसके अंदर से मूव करेगा, ड्रग को डिसॉल्व करेगा उसमें से जो हमारे माइक्रो पार्टिकल्स हैं, और फिर वहीं से डिफ्यूज आउट करेगा, जो कि फास्फेट बफर में हमने रखे हुए हैं, और फिर हम उनको एनालाइज कर लेंगे। थोड़ा सा आपको बस ये रिवाइव करा दूं, अगली स्लाइड पे दिखा देता हूं कि हम किस तरह से ये प्रोसेस रन करते हैं। ये जो कैप्चर एफिशिएंसी की है या इन विट्रो ड्रग रिलीज की है, तो उसको कहते हैं हम एस्टिमेशन ऑफ ड्रग कंटेंट।
फॉर एग्जांपल एक ड्रग आपने डिक्लोफेनिक सोडियम ली हुई थी, उसके आपने माइक्रो पार्टिकल्स बनाए हैं, तो उसको हमने चेक करना है डिसोल्यूशन या कैप्चर एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग कि उसमें डिक्लोफेनिक सोडियम कितनी है। तो उसके लिए हमने यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड अडॉप्ट किया। हमने माइक्रो पार्टिकल का एक सैंपल लिया है जिसमें हमने कहा कि हमने ये प्रिपेयर किए थे, जैसे हम प्रिपेयर करते हैं कि हमने ये प्रिपेयर किए थे 250 मिलीग्राम, फॉर एग्जांपल 100 मिलीग्राम में 10 मिलीग्राम ड्रग के अकॉर्डिंग, तो हमने उसमें से 100 मिलीग्राम ले लिया। ये हमारी थ्योरेटिकल यील्ड है कि हमने बनाया था ये 100 मिलीग्राम, ईच 100 मिलीग्राम माइक्रोस्फीयर कंटेन 10 मिलीग्राम ऑफ एक्टिव ड्रग। तो ये हमारा थ्योरेटिकल यील्ड के बेस के ऊपर हमने एक सैंपल ले लिया 100 मिलीग्राम ड्रग का, उसको हमने डिसॉल्व कर लिया किसी सॉल्वेंट में। फॉर एग्जांपल हमने 10 ml या 25 ml मेथनॉल एथनॉल में डिसॉल्व कर लिया ताकि वो डिसॉल्व हो जाए, उसमें से ड्रग बाहर आ जाए, और फिर हमने इसका वॉल्यूम फॉस्फेट बफर से मेकअप कर लिया 100 ml। ये हमारा सैंपल सोल्यूशन कहलाता है। यही प्रोसेस हम सबके ऊपर करेंगे। ये तो एंट्रैपमेंट एफिशिएंसी का है, वो हम इन विट्रो पे भी यही करेंगे। फिर उसके बाद हम सॉल्यूशन को फिल्टर करेंगे वाटमैन फिल्टर से कि अगर कोई पॉलीमर के कंटेंट्स रह गए हैं तो वो ना आए सॉल्यूशन के अंदर, और वो सिर्फ और सिर्फ ड्रग के कंटेंट उसमें आए। तो जो फिल्ट्रेट होता है वो फ्री फ्रॉम एनी सॉलिड पार्टिकल होता है। इस फिल्ट्रेट को हम फिर ऐसे करते हैं इन अ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एट 236 नैनोमीटर वेवलेंथ, जिसपे डिक्लोफेनिक सोडियम मैक्सिमम अब्जॉर्बेंस देता है, और उसमें हम उसकी सूटेबल डाइल्यूशन, अगर ये कंसंट्रेटेड आता है तो उसकी डाइल्यूशन 10 टाइम्स, फिर उसके बाद 10 टाइम्स हम सूटेबल डाइल्यूशन करके उसको अगेंस्ट फॉस्फेट बफर ही चेक करते हैं। हम ऑटो जीरो भी फॉस्फेट बफर से करेंगे, और उसके बाद फिर हम सैंपल की जगह रिप्लेस करते जाएंगे नया सैंपल, यानी कि वो पहला छोड़ के जो हमने डाइल्यूशन बनाई होगी सैंपल की वो एक चेक कर लेंगे, दूसरी चेक कर लेंगे, तीसरी चेक कर लेंगे, और उसके बाद हम इसको जो ड्रग के कंटेंट है इसमें, क्योंकि वहां से तो अब्जॉर्बेंस आएगी, ड्रग के कंटेंट हम फाइंड करेंगे जब हम कैलिब्रेशन कर्व के साथ कंपेयर करेंगे। कैलिब्रेशन कर्व हम कहते हैं जब हमने रॉ ड्रग ली होती है, जैसे डिक्लोफेनिक सोडियम रॉ ड्रग है, इसका हमने एक सोल्यूशन बनाया जिसको स्टैंडर्ड सोल्यूशन कहते हैं, उससे हम एक वर्किंग सोल्यूशन बनाते हैं, तो वो हमें नॉन कंसंट्रेशन का होता है। वर्किंग सोल्यूशन से हम नॉन कंसंट्रेशन की डाइल्यूशन बनाते हैं एटलीस्ट 5, कम से कम 5, तो वो उनको हम फिर चेक करते हैं 236 नैनोमीटर नॉन कंसंट्रेशन की अब्जॉर्बेंस लेते हैं, फिर हम उसका ग्राफ ड्रा करते हैं, इसको हम कैलिब्रेशन कर्व कहते हैं। उस कैलिब्रेशन कर्व को यूज करके, क्योंकि ये तो कंसंट्रेशन और अब्जॉर्बेंस का रिलेशनशिप होता है, हमने जो अब्जॉर्बेंस ली होती है फिल्ट्रेट की, वो हम इससे देखते हैं कि उसकी मैं चला स्कूल रगड़ो तो उसकी कंसंट्रेशन अगर हम फाइंड कर ले वहां से, तो कंपेयर करके कैलिब्रेशन कर्व से, तो हम उसकी परसेंटेज एफिशिएंसी फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, ये उसके बाद एक मेथड जो कि क्योंकि पार्टिकल साइज के ऊपर डिपेंडेंट होती है ये सारी कहानी हमारी माइक्रो इनकैप्सुलेशन, तो पार्टिकल साइज का एनालिसिस बहुत जरूरी होता है। पार्टिकल साइज के पहले ड्रग कंटेंट का एनालिसिस हो गया, ड्रग का, माइक्रोस्फीयर्स का। अब पार्टिकल साइज जो है वो दो तरीकों से किया जाता है। जब भी करेंगे हम पार्टिकल साइज, तो या तो हम साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस करेंगे या हम उसका इंडिविजुअल पार्टिकल साइज डिटरमिन करेंगे। तो साइज डिस्ट्रीब्यूशन एनालिसिस जो है वो नॉर्मली किया जा सकता है जब हम सीविंग अडॉप्ट करें। तो सीविंग में क्योंकि सेट ऑफ सीव्स लगाते हैं हम डिफरेंट सीव्स के ऊपर जो अटेन, ऊपर से हम सबसे टॉप सीव से उसको पास करवाते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि किस सीव के ऊपर कितना मटेरियल जो है वो होल्ड हुआ है, और फिर हम उसका साइज बता के तो बता देते हैं कि पाउडर में कितने साइज के ग्रेन्यूल्स एग्जिस्ट, कितने साइज के माइक्रो पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, तो ये साइज डिस्ट्रीब्यूशन बता देता है। एक्चुअल साइज जो पता लगता है कि एक का कितना साइज है, ये एक का नहीं बताता, ये तो ग्रुप ऑफ माइक्रोस्फीयर्स का साइज बताएगा, यानी कि ग्रुप का साइज बताता है। सीविंग आप परफॉर्म करेंगे अगर, तो उसमें फिर आप देखेंगे कि आपको ग्रुप का पता लगता है, ग्रुप के साइज का पता लगता है, इंडिविजुअल साइज का पता नहीं लगता। तो उसके लिए हम कुछ टेक्निक यूज करते हैं, जिनमें से एक जो है वो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, एक ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, एक फ्लोरिसेंट स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, या फैम भी कहते हैं, फ्लोरिसेंस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो स्कैनिंग सबसे मिनिमम, यानी कि स्कैन लिया जाता है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। तो ट्रांसमिशन ली जाती है, ट्रांसमिशन वो रीडेबल होती है, तो ट्रांसमिटेंस लेके आप ट्रांसमिटेंस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी करते हैं, या फ्लोरिसेंस डिटरमिन की जाती है, कितनी फ्लोरिसेंस हुई है जब उसके ऊपर फ्लोरिसेंट मटेरियल ने कोई इम्पैक्ट करवाया गया था तो कितनी हुई, तो वो फेम कहलाती है।
तो हम नॉर्मली सेम की बात करते हैं। सेम में हमने स्कैन करना है इलेक्ट्रॉन फोटोग्राफ्स को, यानी कि इलेक्ट्रॉन जब फॉल करेगा माइक्रोस्फीयर के ऊपर तो वो कोई इमेज बनाएगा, वो जो इमेज बनाएगा उसका हमने स्कैन लेना है। तो ये हम नॉर्मली करते हैं जब हमने गोल्ड की प्लेट बनाई हुई होती है, गोल्ड स्टब कहते हैं इसको, गोल्ड स्टब के ऊपर हम माउंट करते हैं अपने माइक्रो पार्टिकल्स को, तो वो एक इनर्ट एनवायरनमेंट देता है। कार्बन एक इनर्ट एनवायरनमेंट होती है, तो कार्बन में सबसे प्योर गोल्ड होता है, तो हमने गोल्ड की स्टब के ऊपर इनको माउंट करना है और फिर हमने इसमें से एनालिसिस करना है। तो वो हमें उसके अगेंस्ट, स्टब के अगेंस्ट आपके पार्टिकल का साइज देगा, क्योंकि स्टब के कार्बन एक ही यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर में लगे होंगे तो वो एक जैसा बैकग्राउंड बना देंगे, सेम बैकग्राउंड बना देंगे। उसके ऊपर फिर ये बनाएंगे, जो उसके अंदर मटेरियल होगा उसका इमेज उसके ऊपर बनना शुरू होगा। तो सेम फोटोग्राफ जो है वो एट एक्सेलरेशन वोल्टेज ऑफ 220 किलो वोल्ट ली जाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन 20 किलो वोल्ट वोल्टेज के ऊपर फॉल कर रहे होते हैं। तो ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन, इससे हमें इमेज मिल जाता है और हम उसका साइज मेजर कर सकते हैं। स्केल लगी होती है साथ में, स्केल से हमें पता लग जाता है कि कितना साइज है एक पार्टिकल का, दो पार्टिकल का, तीन पार्टिकल का, और डिफरेंट पार्टिकल्स का कितना कितना साइज है। तो इंडिविजुअल पार्टिकल का साइज हम इससे फाइंड कर सकते हैं। तो जज़ाकल्लाह बच्चों, ये है हमारा माइक्रो एनकैप्सुलेशन, और इसी के साथ हमारा जो थ्योरी का कोर्स है वो भी इख्तिताम पजीर होता है। बहुत सी दुआएं आप सबके लिए, आपके पेपर अच्छे हों, कोर्स आपको अच्छी तरह समझ आया हो। कोई भी कंफ्यूजन हो, मैं हर वक्त हाजिर हूँ। आप कोई भी क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप मीडिया यूज़ कर सकते हैं, आप किसी वक्त मुझसे ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हम डिस्कशन सेशन शुरू कर लेंगे, क्योंकि लेक्चर तो चलने हैं तो उसमें डिस्कशन सेशन भी हम चलाएंगे लाजमी। हम डिस्कशन सेशन शुरू कर लेंगे और उसकी बेस के ऊपर फिर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सी दुआएं आपके लिए। अभी भी कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर आप पूछें, मैं अभी इसको आंसर करने की कोशिश करता हूँ। सर हमारे पेपर्स 18 जनवरी को होंगे। प्रपोज 18 जनवरी थी डेट। 18 जनवरी जो है वो